Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to learn sample space. In the previous video, we studied outcome. The result of random experiment is called outcome. We studied in the previous video. Today we see about the sample space. Clear? The definition of sample space is the set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. The set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. Random experiment के all possible outcomes का सेट को sample space कहते हैं. Suppose we do a random experiment, we toss a coin. A coin is tossed we are doing this random experiment. What are the outcomes? We know that if you toss a coin, there are two results, either head or tail. अब कॉइन को टॉस किया आपने तो उसके दो आउटकम हैं, क्या है, हेड या टेल. H, T. If you write this all possible outcome in set, it is called sample space. We studied in class 9th how we write the set. We use the curly bracket to write the set. So we write here H, T. Clear? What do you write here? The set of all the possible outcome of a random experiment is called the sample space. अब यहां पर हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा किए, एक कॉइन टॉस करे. अब कॉइन टॉस करने के बाद उसके आउटकम्स क्या क्या हैं, हेड या टेल हैं, तो उनका सेट तो क्या बोलेंगे हम, सैंपल स्पेस बोलेंगे. ये सैंपल स्पेस है. इफ यू टॉस ए कॉइन, it is denoted by S or omega. To denote the sample space, we use the letter S or omega. Omega is a Greek letter, so we denote it by S. Clear? If one coin is tossed, what is the sample space? S is equal to, in curly bracket, H, T. Clear? Then each element of the sample space is called sample point. What are the element of this sample space? H and T. So each element of sample space is called sample point. सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, सैंपल पॉइंट बोलते हैं. यहां पे H क्या है, सैंपल पॉइंट है. T क्या है, सैंपल पॉइंट है, क्योंकि H और T इस सैंपल स्पेस के क्या है, एलिमेंट है. क्लियर? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S इज डिनोटेड बाय N of S. How many elements are in the set S? There are two elements. We denote number of element in set S by N of S. We write here 2.
if n of s is finite, then the sample space is said to be a finite sample space. अगर सैंपल स्पेस फाइनाइट है, you can count the element of the sample space, then it is called finite sample space. So this sample space is a finite sample space. Why? You count the element of this sample space easily. How many elements are there? 2 elements. So it is a finite sample space. Why? N of s is finite. Clear? You must remember this. We take one more example here. Suppose we do a random experiment. We toss 2 coins. 2 coins are tossed. If 2 coins are tossed, what are the outcomes? HH, HT, TH और TT. 2 कॉइन टॉस करे आपने तो आउटकम्स क्या आते हैं? HH आता है, HT आता है, TH आता है या TT आता है. ये आउटकम्स है. वी नो दैट. हमें पता है रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को क्या बोलते हैं? आउटकम्स बोलते हैं. तो आउटकम्स कहां पे? ये है यहां पर आउटकम क्या है? ये. इफ राइट दिस आउटकम इन सेट फॉर्म, we know that the set of all the possible outcomes of a random experiment is called sample space. So we write this as sample space. S is equal to HH in curly bracket HH comma HT comma TH comma TT. Clear? This is the sample space. If 2 coins are tossed, we write the set of all the possible outcome in the curly bracket. N of s here, there are 4 elements in S, 1, 2, 3 and 4. N of s is 4. We take one more example. A die is thrown. A die is thrown. अब एक डाई आपने थ्रो करे. अब एक डाई थ्रो करने के बाद आउटकम क्या क्या आ सकते हैं? रिजल्ट क्या आते हैं? आउटकम्स आर 1, 2 or 3, 4, 5 and 6. These are the outcomes. डाई थ्रो करने के बाद आउटकम ये आने वाले. अब इन तमाम आउटकम का जो सेट है उसको क्या बोलेंगे? हम सैंपल स्पेस बोलेंगे. तो यस क्या होगा यहां पर? S 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the sample space if one die is thrown. ये क्या है? सैंपल स्पेस है अगर आपने एक डाई थ्रो करे. N of S, how many sample points are there in S? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There are 6 sample points. Here this sample space is finite. Why? N of S is countable. N of S is 4. Here this sample space S is finite.
Why? N of s is finite. You count this, the sample point of this sample space easily. It is also a finite sample space. Clear? You must remember this definition. Why? To solve any question on the probability, we start our answer with sample space. You must remember this definition. Open your books and see on page number 117. On page number 117, a table is given to you. In this table, some example of the finite sample space are given to you. Clear? The headings of the table are serial number, random experiment, sample space, number of sample points in S. First is given to you random experiment. One coin is tossed. If one coin is tossed, what is the sample space? We just see S is equal to, in curly bracket, H comma T. Bracket close. N of S, how many sample points are there? 2 sample points. H is 1, T is second, N of S is given to you 2. Number 2. Random experiment is given to you. 2 coins are tossed. Then S is given to you. S is equal to, in curly bracket, HH, comma HT, comma TH, comma TT, bracket close. Then how many sample points are there in this sample space? 4 sample points are there. HH is 1, HT is second, TH is third, TT is 4. So N of S is equal to, fill in the blanks is given to you. How many write you there? You write there 4. Third, random experiment is given to you. 3 coins are tossed. Which random experiment are we doing here? 3 coins are tossed. Sample space is given to you. S is equal to, in curly bracket, HH, comma HHT, comma sample space S is given to you. S is equal to, in curly bracket, HHH, comma HHT, comma HTH, comma THH, comma HTT, comma THT, comma TTH, comma TTT, bracket close. N of S, how many sample points are there? 8 sample points are there. So N of S is equal to 8. One more thing you remember there. If one coin is tossed, N of S is equal to 2. If 2 coins are tossed, N of S is equal to 4. If 3 coins are tossed, N of S is equal to 8. You can say it also, if one coin is tossed, N of S is 2 raised to 1. 2 coins is tossed, N of S is 2 raised to 2. Why? 4 is the square of 2. And if 3 coins is tossed, N of S is 2 raised to 3. Clear?
Here 8 is the cube of 2. You must remember this. 4. A die is thrown. What is the sample space? S is equal to, in curly bracket, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bracket close. How many sample points are there? Here are 6 sample points. So n of s is equal to, fill in the blanks is given to you. N of s is equal to, fill in the blanks is given to you. You write there 6. Then 5th, 2 dice are thrown. Then the sample space s is equal to, in curly bracket, their first bracket is given to 1, 1, second 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Then 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Then 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. And so on, and the last 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Clear? Here 36 sample points are there in sample space, so n of s is equal to 36. Clear? Here also you must remember that if you throw a die, n of s is equal to 6. If you throw 2 dice simultaneously, then n of s is equal to 36. So if 1 dice throw, then n of s is 6:1. 2 dice throw, n of s is 36, means 36 is square of 2. If anybody asks you what is n of s, if 3 dice are thrown simultaneously, you write 6:3. 6:3 means it is 216. अब आपने एक बात याद रखना है, 1 coins are tossed, 2 coins are tossed, 3 coins are tossed, 1 dice thrown, 2 dice thrown. ये जो सैंपल स्पेस है इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, इसमें कुछ बदल होने वाला नहीं है. क्लियर? क्योंकि मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए पहले हमको सैंपल स्पेस लिखना ज़रूरी है. तो आपने ये 5 जो मैंने बोला इसको अच्छी तरह याद कर लेना है. ये अगर आपको अच्छी तरह याद हो गए तो आप बाकी जो सवालात उस पर पूछे जाते हैं आप उसकी मदद से आसानी से लिख सकते हैं. अब यहाँ से जो है उसमें थोड़ा चेंज होता है. क्या चेंज होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा. S 6 है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25. अब यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या करें हम, कार्ड्स हैं, कार्ड्स पर नंबर हैं. एक कार्ड पर 1 है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे 3 है, ऐसे 25 कार्ड्स हैं. अब आप क्या कर रहे, उन कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ कर रहे, एक कार्ड निकाल रहे. अब एक कार्ड निकाले आपने तो रिजल्ट क्या हो सकता है, रिजल्ट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, -25 हो सकता है. तो अभी हमने देखे द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. आउटकम्स किसे बोलते, द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स. तो यहाँ पे आउटकम क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, -25 है. क्लियर? तो यहां पर हमने अभी देखे डेफिनेशन देखे सैंपल स्पेस की. क्या देखे हमने,
A set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. तो यहाँ पे S क्या आएगा? S is equal to curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6, dash up to 25 bracket close. How many sample points are there? Here 25 sample points are there. So n of S is equal to 25. क्लियर? अब यहाँ पे चेंज क्या होता है? सपोज आपको दे दिए 50 कार्ड्स हैं. There are 50 cards bearing number 1 to 50. चेंज क्या होगा? यहाँ पर S लिखेंगे आप. S is equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6, dash up to 50 bracket close. n of S क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा. सपोज आपको 100 कार्ड दिए हुए बेयरिंग नंबर 1 to 100. क्या चेंज होगा? यहाँ पर S लिखेंगे आप. S is equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dash up to 100 bracket close. n of S कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. क्लियर? यू मस्ट रिमेंबर दिस. इसमें थोड़ा चेंज है. अगर आपने एक अच्छी तरह याद कर लिए तो आपको आसानी से आगे करने आ जाता है. 7 रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या दिया? 7 आपको अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. क्या कर रहे हैं आप? 52 प्लेइंग कार्ड में से वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड क्या कर रहे हैं आप? ड्रॉन कर रहे हैं. तो हमने देखे कि पैक ऑफ 50 का पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड रहते. देखे कि नहीं हमने? कलर के लिहाज से उसके दो ग्रुप हो जाते, रेड और ब्लैक. फिर उसके 4 पार्ट होते. 13 हर्ट कार्ड, 13 डायमंड कार्ड्स, 13 क्लब कार्ड्स और 13 स्पेड्स कार्ड्स. अब हर 13 ग्रुप में ए लिखा हुआ एक कार्ड रहता है, उसको बोलते एस कार्ड. और 2 to 10 लिखे हुए 9 कार्ड रहते. ऐसे हो गए टोटल कार्ड, ये हो गए 10. उसके बाद 1 रहता जे मीन्स जैक, एक रहता फिर क्वीन क्यू यानी क्वीन, और दूसरा रहता किंग के वाला किंग रहता. ऐसे टोटल 3 वो जैक, क्वीन और किंग जो रहते इस पे रहता फेस रहते, इसलिए उनको बोलते फेस कार्ड बोलते. क्लियर? ये सब इसके बारे में दिया हुआ है. तो एस यहाँ पे डायमंड लिखे हुआ है, स्पेड लिखे हुआ है, हर्ट लिखे हुआ है, क्वीन लिखे हुआ है, क्लब लिखे हुआ है. ये बात है उसके अंदर है. तो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 52 कार्ड्स. सो सैंपल पॉइंट्स आर 52. सो एन ऑफ एस इज इक्वल 52. यू मस्ट रिमेंबर दिस आल्सो. आपने इसको भी अच्छी तरह याद कर लेना है. सैंपल स्पेस आपको सही लिखने आना. अगर आपने सैंपल स्पेस करेक्ट लिखे तो आपका आंसर सही आने वाला है. सैंपल स्पेस गलत हो गई, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. क्लियर? ये बात आपने याद रखना है. फिर आपको क्या दिया हुआ है? पेज नंबर 117 पर लेटस रिमेंबर दिया हुआ है. अब लेटस रिमेंबर में क्या दिया हुआ है? द सैंपल स्पेस फॉर ए कॉइन toss twice is the same as that of 2 coins tossed simultaneously. The same is true for 3 coins. ये बात याद रखने का है. क्या याद रखना है? The sample space for a coin toss twice. आपने क्या करे? एक कॉइन को 2 मर्तबा टॉइस करे या 2 कॉइन को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस करे, तो दोनों की जो सैंपल स्पेस है वो सेम आने वाली. उसमें कुछ बदल नहीं है, खाली अल्फाज चेंज है, वर्डिंग चेंज है, आंसर एस वही जाने वाला है. क्लियर? यू मस्ट रिमेंबर दिस. आपने एक कॉइन को 2 मर्तबा टॉस करे
या दो कॉइन को एक साथ टॉस करे, साइमल्टेनियसली टॉस करे, तो सैंपल स्पेस दोनों के लिए सेम आएगी। क्या आएगी? S इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट HH, HT, TH, TT ब्रैकेट क्लोज। N ऑफ S कितना आएगा? 4 आएगा। और इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर 3 कॉइन्स ऑल्सो, और ये 3 सिक्कों के लिए, 3 कॉइन के लिए भी ट्रू रहेगा। अब क्या करें आपने? एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करे या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करे, तो दोनों की सैंपल स्पेस सेम आने वाली है, उसमें कुछ बदल होने वाला नहीं है। ये बात आपने याद रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है, द सैंपल स्पेस फॉर ए डाई रोल टॉइस is the same as 2 dice rolled simultaneously। और एक बात याद रखना है, अगर आपने एक डाई को 2 टाइम्स रोल करे या 2 डाई को एक साथ रोल करे, दोनों की सैंपल स्पेस वही आने वाली है, उसमें कुछ बदल होने वाला नहीं है। ये बात आपने याद रखना है। क्लियर? ये रिमेंबर है। Now we start practice set 5.2. Now we start practice set 5.2. Question number 1. For each of the following experiment, write sample space S and number of sample points N of S. आपको क्या करना है? नीचे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं उसमें हर एक के लिए S और N ऑफ S लिखना है। पहला क्वेश्चन है, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously। यहां पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं? हम एक कॉइन टॉस कर रहे और एक डाई थ्रो कर रहे साइमल्टेनियसली, मतलब मीन्स एक साथ कॉइन भी टॉस कर रहे और डाई भी थ्रो कर रहे, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा आपको लिखना है, और N ऑफ S भी लिखना है। We know that 1 coin is tossed. What is the sample space? S is equal to H, T. 1 die is thrown. What is the sample space? S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. But here we are tossing a coin and throwing a die simultaneously. Then what is the sample space we write here? 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. What is the sample space? We write here S is equal to, in curly bracket, we write head first. कॉइन पर हेड आया होगा. What is sample space? S in curly bracket H comma 1 H comma 2 coin per head die per 2 H comma 3 H comma 4
H, 5 and H, 6. अब सेम पेयर आपने क्या करना है, T के साथ बनाना है. क्या होगा, कॉइन पर T और डाई के अपर फेस पर 1, T, 2, T, 3, T, 4, T, 5 and T, 6. N of S, how many sample points are there? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Have you complete the answer? अब आपने ये भी सैंपल स्पेस को याद करना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है. 1 coin and 1 die are, 1 coin is tossed and 1 die is thrown simultaneously. इसका सैंपल स्पेस S आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं. सेकेंड, 2 digit numbers are formed using digits 2, 3, and 5 without repeating a digit. क्या करना है इसके अंदर, आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या करना है, 2, 3, 5 इन डिजिट का यूज करके 2 digit नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट. You know which numbers are 2 digit number? 10, 11, 12, 13, 14, 15 up to 99. These all are 2 digit number. है ना? So here we form 2 digit number with the help of digit 2, 3, 5 without repeating the digit. रिपीट करना मतलब क्या करना, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पर एक ही डिजिट लेना, उसको बोलते रिपीट करना. यहां पर आपने क्या करना है, ये जो 2 digit नंबर आप फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, उसमें 10th, उसमें यूनिट प्लेस और 10 प्लेस का डिजिट सेम नहीं रहना चाहिए. ये बात याद रखना है. जैसे देखिए 42 इज ए 2 digit नंबर, है कि नहीं. 2 यूनिट प्लेस पर है और 4 10 प्लेस पर है, ये 2 digit नंबर है. अब आपको क्या करना है, ये 2, 3, 5 का यूज करके 2 digit नंबर फॉर्म करना है, लेकिन यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पर सेम डिजिट नहीं लेना है, रिपीट नहीं करना है आपको. वी राइट हियर 2 digit numbers are formed using digits 2, 3 and 5 without repeating a digit. We write sample space here S. अब एक बात आपने याद रखना है, जो आपको डिजिट दिए हुए हैं उनसे 2 digit नंबर कैसे तैयार करेंगे आपने क्या करना है, उसमें से पहला डिजिट जो है वो क्या करना है 10 प्लेस पे लेना है, और बाकी रिमेनिंग डिजिट जो हैं
वो आप लेंगे यूनिट प्लेस पर। ये हो गया। उसके बाद सेकेंड डिजिट 10 प्लेस पे, बाकी रिमेनिंग डिजिट यूनिट प्लेस पे। फिर थर्ड डिजिट 10 प्लेस पे, बाकी रिमेनिंग डिजिट यूनिट प्लेस पे। सिर्फ आपने यहां पर याद रखना है कि यूनिट प्लेस पर और 10 प्लेस पर सेम डिजिट नहीं आना। और एक बात क्लियर करता हूं मैं आपको, अगर 0 दिया हुआ है तो 0 को 10 प्लेस पर लेकर 2 डिजिट नंबर नहीं बनता है। आप क्या बोलेंगे, सर ने बोल दिए। सर ने क्या बोले, जितने डिजिट दिए हुए हैं उसमें से पहले डिजिट को 10 प्लेस पे लेना है, बाकी को यूनिट प्लेस पे लेना है और 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। लेकिन 0 को अगर आप 10 प्लेस पर लेंगे तो 2 डिजिट नहीं बनेगा। 0 कहाँ लेना है आपने, यूनिट प्लेस पर ही लेना है। क्लियर, याद रखना है आपने। अब आपको डिजिट कौन से दिए हुए हैं, 2, 3, 5। तो हम क्या करेंगे, 2 को 10 प्लेस पे लेंगे। अब रिमेनिंग डिजिट कौन से हैं, 3 और 5 है, उनको यूनिट प्लेस लेंगे। पहला 3, 2 10 प्लेस, 3 यूनिट प्लेस, फिर 2 10 प्लेस, 5 यूनिट प्लेस। ये हो गया 23, 25। अब 3 को 10 प्लेस पे, 3 10 प्लेस और रिमेनिंग डिजिट जो है उनको यूनिट प्लेस में लेंगे। अब रिमेनिंग कौन से है, 2 और 5। 3 10 प्लेस, 2 यूनिट प्लेस, 3 10 प्लेस, 5 यूनिट प्लेस। क्लियर। अब 5 को क्या करेंगे आप, 10 प्लेस लेंगे, 5 और 2 को यूनिट प्लेस पे, फिर 5 10 प्लेस पे, 3 को यूनिट प्लेस पे। हो गया, खत्म। 23, 25, 32, 35, 52, 53. N of S, how much here? Here 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here we complete our first question. Question number 2 is, the arrow is rotated and it stops randomly on the disc. Find out on which color it may stop. क्या दिया है आपको, एक डिस्क दी हुई है। डिस्क के ऊपर डिफरेंट कलर हैं, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है। और इस डिस्क पर क्या होता है, एक एरो रोटेट होता है। तो ये एरो कौन से कलर पर स्टॉप होता है आपको लिखना है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो आपको पता है कि आपने अगर इस एरो को रोटेट किए, ये जो एरो है वो क्या करिए, इनमें से किसी एक कलर पर स्टॉप होगा। अब कौन से कलर पर स्टॉप होगा आपको पता है क्या, नहीं। ये रेड पर स्टॉप हो सकता है, ऑरेंज पर हो सकता है, येलो पर हो सकता है, ब्लू पर हो सकता है, ग्रीन पर हो सकता है या पर्पल पर हो सकता है। इन कलर में से किसी एक कलर पर स्टॉप होगा वो। तो यहां पर हो जाएगा सैंपल स्पेस लिखेंगे इसके लिए हम। सैंपल स्पेस एस क्या आएगा, रेड कॉमा ऑरेंज, ऑरेंज पर स्टॉप होगा या येलो पर स्टॉप होगा या ब्लू पर स्टॉप होगा और ग्रीन पर या पर्पल पर। इन कलर में से कोई तो भी एक कलर पर क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। सो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा यहां पर, 6 कलर है इसलिए 6 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 find the days on which the date is multiple of 5. See the given page of calendar. अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, मार्च 2019 का पेज दिया हुआ है।
आपको क्या करना है, 5 के मल्टीपल में जो डेट है वो कौन से डे को आती है, वो डे लिखना है आपको। क्लियर? अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहां पर 5 के मल्टीपल में डेट कौन कौन से है। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब ये डेट जो मैंने राउंड किया ये सब 5 के मल्टीपल में है। आप यहां पर डे कौन सा आ रहा आपको लिखना है। सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा यहां पर, S इज इक्वल टू, देखिए ये 5, डेट क्या है 5 है, 5 मार्च, डे कौन सा है, ट्यूसडे, वी राइट हियर ट्यूसडे। टेन मार्च क्या है यहां पर, एस, संडे। उसके बाद 15 मार्च, 15 मार्च को क्या है देखिए, फ्राइडे। उसके बाद क्या है 20 मार्च, वेडनेसडे। उसके बाद 25 मार्च को मंडे, और लास्ट में सैटरडे। एन ऑफ एस क्या आ जाएगा यहां पर, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। 4, फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमिटी of 2 from 2 boys B1 comma B2 and 2 girls G1 comma G2. Complete the following activity to write the sample space. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, आपने क्या करना है, रोड सेफ्टी कमेटी फॉर्म करना है। कितने की, 2 मेंबर की। कहां से तैयार करना है आपको, 2 बॉयज B1 कॉमा B2, 2 बॉयज दिए हुए, और 2 गर्ल्स G1 कॉमा G2 है। इनमें से कोई भी 2 मेंबर्स लेकर आपने क्या करना है, एक रोड सेफ्टी कमेटी फॉर्म करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, नीचे की सैंपल स्पेस कंप्लीट करना है। अब देखिए यहां पर कमेटी ऑफ 2 बॉयज, अगर आपने क्या करे, ये 2 बॉयज और 2 गर्ल में से सिर्फ क्या करे, जो 2 मेंबर लिया आपने वो सिर्फ क्या है, बॉयज है। कमेटी ऑफ 2 बॉयज बनाया आपने, तो क्या आएगा यहां पर, B1 B2। सेकेंड, कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, आपने जो कमेटी बनाए उसमें सिर्फ 2 गर्ल्स ही थे, बॉयज नहीं है, तो क्या आएगा यहां पर, G1 कॉमा G2। सेकेंड, थर्ड है कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब आपने क्या करे, कमेटी बनाए, कमेटी में क्या है, एक बॉय और एक गर्ल है। अब आपको एक कमेटी दी हुई है, यहां पर क्या दिया हुआ है, B1 G1, ये दिया हुआ है आपको। अब आपने क्या करना है, कमेटी बनाना है 2 की, लेकिन उसमें एक बॉय और एक गर्ल रहना।
तो क्या होगा, B1 G1 बनाए, अब B1 G2, फिर B2 G1, B2 G1 और B2 G2, ठीक है। यहां पे कमेटी में सिर्फ 2 बॉयज हैं, यहां पर 2 गर्ल्स हैं, और ये जो 4 कमेटी हमने बनाए उसमें 1 बॉय और 1 गर्ल है। अब सैंपल स्पेस, ये सबको क्या करेंगे, हम एक साथ लिख देंगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। पहला क्या है, B1 B2, फिर G1 G2, कॉमा यहां पर B1 G1, B1 G2, B2 G1, कॉमा B2 G2. Here we complete practice set 5.2. Inshallah, we'll meet soon in next video.